Hello, my dear student. I am Mahima Chaurasia, Assistant Professor, IET Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Faizabad. Students, today we are going to start a new topic, ecosystem. Ecosystem. Ecosystem term made up of two words, eco and system. Eco means environment and system means operating, interacting or interdependent complex. Environment, our surrounding is called environment. Surrounding means air, water and soil or earth. The sphere of earth is called atmosphere. The sphere of water is called hydrosphere. The sphere of soil or land is called lithosphere. Do you know what is biosphere? क्या आप जानते हो कि बायोस्फीयर क्या है? The some part of atmosphere and part of hydrosphere and the part of lithosphere where the survival of life is possible. In other words, we can say that biosphere is a zone which is capable for sustaining life. On other word, we can say that the height where the height in the atmosphere where the survival of life is possible, the depth in the hydrosphere where the survival of life is possible, and the depth of lithosphere where the survival of life is possible. That parts are called biosphere. The term environment is developed from the French word enviro. Enviro means surrounding. Enviro means surrounding. According to Environmental Protection Act 1986, Environmental Protection Act 1986 के according, environment क्या है? Environment is the sum of air, water and land, the relationship among themselves with living organism and with the property. Environmental Protection Act 1986 के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट टोटल है, सम है किस चीज का? एयर, वाटर एंड सॉइल का. इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप है अपने ऑर्गेनिज्म के साथ और प्रॉपर्टी के साथ. इंटर रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है. Environment consists of four segments. Atmosphere. Atmosphere is the blanket of gases surrounding by the earth. On other word, we can say the atmosphere is the sphere of gases. Lithosphere, it is the outer mantle of solid earth. ये क्या है? आउटर मेंटल है सॉलिड अर्थ का. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ सॉइल. Hydrosphere, hydro means water, sphere means circle. Water का circle क्या है? आपका hydrosphere है. In other word, we can say that it is the water domain, for example, pond, river, ocean, etc. Biosphere. Biosphere indicates the realm of living organism and their interaction with their environment. Environment means atmosphere, hydrosphere and lithosphere. On other word, we can say that biosphere is the zone which is capable for sustaining life. Next slide. Ecosystem. Ecosystem is the system which is formed by the interaction of variety of individual organism with each other and with their physical environment. Ecosystem क्या है? Ecosystem एक system है जो कि form होता है variety of individual organism के आपस में interaction से और उनके physical environment के interaction से form होता है. The term ecosystem was given by E.G. Tinsley in 1935, who defined it. It is a system resulting from the interaction of living and non-living factor of the environment.
एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म प्रपोज किया था। उनके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम वो सिस्टम है जो कि इंटीग्रेशन से बनता है, किसके, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर के इन्वायरमेंट के इंटीग्रेशन से फॉर्म होता है। द स्टडी ऑफ ecosystem is called ecology. The study of ecosystem is called ecology. Ecology term is a Greek word which is developed from the okios means home and logos means study. Ecology term एक Greek word है जो कि okios टर्म से डेवलप हुआ है। ओकियोस का मतलब होता है होम एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। The term ecology was coined by the German biologist Haeckel in 1869. What is ecology? A branch of science that deals with study of interaction between living organism and their physical environment is called ecology. In other words, we can say that ecology is the reciprocal relationship between organism and their environment. Next slide. This slide shows the system model of an ecosystem showing integration of various subsystems. Environment made up of two components, abiotic component and biotic component. The biotic component involve the biota. The biotic component involve the biota. Biota means living organism. The biota means living organism. And abiotic factor involves two factors such as climatic factor and chemical factor. The climatic factor involves temperature, pH, humidity, and chemical factor involve different type of nutrients such as calcium, magnesium, sodium, potassium, etc. The chemical factor modulate the biota. Chemical factor modulate करता है biota को. After the modulation के बाद if the biota modulate by the climatic factor, it is established in the ecosystem and a fine tuning created between biota and their environment. जब क्लाइमेटिक फैक्टर बायोटा को मॉड्यूलेट करता है और वो बायोटा उस इन्वायरमेंटल कंडीशन, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉड्यूलेट करके एस्टेब्लिश हो जाता है, तो बेटा उनके इन्वायरमेंट और बायोटा के बीच में फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो स्पीसीज वहां आराम से सरवाइव करने लगती है. दैट प्रोसेस कॉल्ड मॉड्यूलेशन. Next is climatic factor. Next is the chemical factor. Chemical factor means different type of nutrient, calcium, magnesium, sodium, etc. The chemical factor also modulate the biota. If the biota modulate by these chemical factor, a fine tuning created between the environment and biota. This fine tuning establish the environment. अगर केमिकल फैक्टर के थ्रू क्या होता है कि जो बायोटा होता है बेटा वो क्या होता है, मॉड्यूलेट होता है. फॉर एग्जाम्पल क्या चीज है बेटा, देखिएगा कि अगर कोई भी कहीं किसी इन्वायरमेंट में कैल्शियम की अबंडेंस है तो वहां वही प्लांट सरवाइव कर पाएंगे जो कि कैल्शियम के अबंडेंस में क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं. तो वो उनकी क्या होगी, पूरे प्लांट्स के साथ इन्वायरमेंट क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा. और उनकी जब जिस समय मॉड्यूलेशन होगा, अगर वो मॉड्यूलेट हो जाते हैं, वहां एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उनकी अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या होती है, फाइन ट्यूनिंग क्रिएट हो जाती है. जैसे इन्वायरमेंट की अपने बायोटा के साथ फाइन ट्यूनिंग बेटा क्रिएट होती है तो रिसोर्स की अबंडेंस हो जाती है. उस एरिया में रिसोर्स की क्या हो जाती है, अबंडेंस हो जाती है. नेक्स्ट आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि दो प्रोसेस और लिखी हुई है, हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल साइक्लिंग. हाइड्रोलॉजिकल का मतलब होता है, हाइड्रो का मीन्स वाटर हो गया और साइक्लिंग का मतलब हुआ
वाटर की साइक्लिंग, बेटा वाटर की साइक्लिंग में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसका 1/3 पार्ट लैंड है और 3/4 पार्ट जो है वो आपका क्या है, वाटर है। वाटर होने के कारण पूरा 3/4 पार्ट जो है वाटर से ढका हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ए ब्लू प्लैनेट। वाटर बॉडीज में से वाटर एवोपरेट होता है, ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में होता है, ये ठंडे होके प्रेसिपिटेट होके नीचे आते हैं रन ऑफ के थ्रू, फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, आपकी सरफेस वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं। कुछ वाटर ऐसा होता है जो फिल्टर होके आपकी ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। नेक्स्ट आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, बायोकेमिकल साइकिल। केमिकल मीन्स न्यूट्रिएंट, केमिकल्स मीन्स न्यूट्रिएंट, जियो मीन्स अर्थ एंड बायो मीन्स लिविंग। न्यूट्रिएंट की अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो सर्कुलेशन है वही आपकी क्या है, बायो जियो केमिकल साइक्लिंग है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट अपने अर्थ से अब्सॉर्ब करता है और उन न्यूट्रिएंट को फूड के फॉर्म में अपने टिश्यू में स्टोर करता है। ये फूड डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू इनटेक किए जाते हैं और फिर सबकी डेथ के बाद क्या होता है बेटा, फिर से ये जो है अर्थ में पहुंच जाते हैं और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट पूल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम सेवरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम आर ऑपरेटेड. The ecosystem broadly classified into natural ecosystem. Natural ecosystem is the system which is governed by in nature and controlled by nature. Next slide. Types of ecosystem. There are two types of ecosystem, natural ecosystem and man-made ecosystem. Natural ecosystem. Natural ecosystem is a system which is governed and controlled by nature. Artificial ecosystem. Artificial ecosystem is a system which is governed by human being or man. Human being and man. The natural ecosystem again divided into two parts, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. The terrestrial ecosystem is the system which is found in a land. Terrestrial ecosystem is a system which is found in land, and aquatic ecosystem is a system which is found in open water bodies. The terrestrial ecosystem again divided into three parts. First one is forest ecosystem, second one is desert ecosystem, and third one is grassland ecosystem. The aquatic ecosystem again divided into two parts, freshwater ecosystem and marine water ecosystem. Freshwater ecosystem means absence of salt, absence of salt, and marine water ecosystem means presence of salt. The freshwater ecosystem again divided into lentic ecosystem and lotic ecosystem. Lentic ecosystem means stagnant water ecosystem or standing water ecosystem, and lotic ecosystem is running water ecosystem. For example, river. For example, river. And lentic water ecosystem, example of lentic water ecosystem, pond and lake. Pond and lake. Beta, this slide is the description of types of ecosystem: natural ecosystem, terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, freshwater ecosystem divided into lentic and lotic ecosystem, marine ecosystem, artificial man-engineered ecosystem. Artificial ecosystem is a ecosystem which is governed and controlled by man. For example, cropland ecosystem, hospital ecosystem, college ecosystem, etc. Next, there are two words are very important in the concept of ecosystem. First is holosynosis. Holosynosis, what is holosynosis? Holosynosis is the relationship. Holosynosis is the relationship in which or which type of relationship? In an ecosystem, biotic community and abiotic environment influence each other.
In ecosystem, biotic community and abiotic environment influence each other. This relationship is known as holosynosis. होलोसिनोसिस क्या प्रोसेस बेटा, कि जो आपका बायोटिक इन्वायरमेंट है वो एबायोटिक फैक्टर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये रिलेशनशिप क्या कहलाती है, होलोसिनोसिस कहलाती है। अब देखिए बेटा, हम एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहे हैं ए बायोटिक फैक्टर कैसे बायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है और बायोटिक फैक्टर कैसे ए बायोटिक को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए पहला हम दिखा रहे हैं बायोटिक ए बायोटिक को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखिए बायोटिक में हो गए जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब किसमें आ रहे हैं, आपके बायोटिक फैक्टर। बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। बायोटिक, अब बेटा देखिए क्या करते हैं, जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता है ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, एबायोटिक फैक्टर जो कि गैसेस हैं, गैसेस में कार्बन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, स्टेब्लिश है। मतलब आपके पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में जो ये आपकी ऑक्सीजन होती है 20.94% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये किसके थ्रू मेंटेन हो रही है, किसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो रही है, आपके बायोटिक फैक्टर के थ्रू क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। ये इसका मतलब क्या हुआ, बायोटिक फैक्टर एबायोटिक को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। यही प्रोसेस क्या है, होलोसिनोसिस। अब रिवर्स देखते हैं, एबायोटिक फैक्टर कैसे बायोटिक को करता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो बायोटिक कम्युनिटी अपने आप रेगुलेट हो जाती है, उनकी डाइवर्सिटी कम होने लगती है। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तब भी क्या होती है, उनकी कम्युनिटी रेगुलेट होती है। अगर जो है सन राइज नहीं करेगा और लाइट नहीं आएगी तो फ्लावरिंग की और सीडिंग की प्रोसेस क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। That means abiotic factor influence the biotic factor. This process is known as, this relationship is known as holosinosis. फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है, कैपेसिटी है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की कैपेसिटी है, किस चीज की कैपेसिटी है, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मेंटेनेंस की क्या है, कैपेसिटी है। जिससे क्या कहते हैं, इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं बेटा, होम्योस्टैसिस कहते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर ले, सेल्फ मॉड्यूलेट कर ले या फिर सेल्फ मेंटेन कर ले। अभी आपने देखा होगा, अगर पोल्यूशन का लेवल, पोल्यूशन को हम कम रिलीज करें तो सिस्टम के अंदर पावर होती है कि वो अपने आप को क्या कर ले, रेगुलेट और मेंटेन कर ले। अभी कोरोना में लॉकडाउन से क्या हुआ कि सारी इंडस्ट्रीज रुक गई, व्हीकल्स रुक गए। तो इससे क्या हुआ, आपने देखा होगा गर्मी के भी सीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ। इसका मतलब सिस्टम के पास कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मेंटेनेंस और सेल्फ रिनोवेशन की। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। क्या चीज है, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, सुनिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। किस चीज का डिस्क्रिप्शन है, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। मतलब क्या चाहिए आपको इसमें डिफाइन करना है, लाइफ हिस्ट्री, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्पेस। किसी जगह पे किसी भी स्पीसीज की क्या पॉपुलेशन है, क्या हिस्ट्री है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अभी यहाँ एक टर्म आ रहा है पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड कम्युनिटी। The major structural feature of ecosystem are species composition, stratification, trophic organization, and nutrient cycling. Next slide. Next,
the structural feature of ecosystem is, first one is species composition. What is species composition? Species composition means each ecosystem has its own type of species composition. हर इकोसिस्टम के पास अपना खुद का स्पीसीज कंपोजिशन होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इकोसिस्टम के पास वाटर में ग्रो करने वाली स्पीसीज होंगी. दैट मीन्स द स्पीसीज विच ग्रो इन वाटर has less developed root. ठीक है. In desert ecosystem, the species which are found in desert, the root is well developed. Yes, the root is well developed. Different ecosystem have different species composition. जो different ecosystem है उनके पास different species composition होगा. A great variety of species are found in forest ecosystem, whereas a few species occur in a desert ecosystem. बहुत जो है forest ecosystem में स्पीसीज की वैरायटी होगी और आपके डिजर्ट इकोसिस्टम में स्पीसीज कम पाई जाएगी. व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? नेक्स्ट फीचर इज स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट फीचर इज स्ट्रेटिफिकेशन. व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? व्हाट इज स्ट्रेटा? स्ट्रेटा मींस लेयर. स्ट्रेटा मींस लेयर. स्ट्रेटा मींस लेयर बेटा. लेयर मतलब क्या हुआ? ईच ecosystem form one or more layer or strata. The organism in each ecosystem form one or more layer or strata. Each comprises the population of particular kind of species. मतलब क्या हुआ बेटा? सुनिएगा कि ऑर्गेनिज्म जो है इकोसिस्टम में एक और मोर लेयर को फॉर्म करते हैं और हर लेयर क्या होती है? पर्टिकुलर काइंड की स्पीसीज की पॉपुलेशन से बनी होती है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या चीज है. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होंगे? कितने लेयर होंगे? देखिए ग्रास वेजिटेशन होगा, नीचे होगा ग्रास लैंड होगा, उसके ऊपर क्या होंगे? बुशेस होंगी और सबसे ऊपर क्या होगा? क्राउन ऑफ ट्री होगा. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 3 लेयर हैं बेटा. एक क्राउन ऑफ ट्री हो गया, बुशेस हो गए और ग्राउंड वेजिटेशन. जो ग्राउंड वेजिटेशन है वो अलग टाइप के एनिमल से क्या होगी? ऑक्युपाइड होगी. बुशेस वाला जो लेयर है उसमें अलग टाइप के एनिमल होंगे और क्राउन वेजिटेशन में अलग एनिमल होंगे. तो कितनी लेयर फॉर्म हो रही है? 3 लेयर फॉर्म हो रही है. देखिए ग्रासलैंड में क्या होंगे? रैबिट्स होंगे. ठीक है. माउस होंगे. बुशेस में आपकी क्या हो जाएंगी? गोट हो जाएंगी और बफेलो और क्या हो जाएंगी? आपकी काऊ हो जाएंगी. क्राउन वेजिटेशन में आपके एलिफेंट्स की लेयर हो जाएगी. एलिफेंट मतलब जो उस पे फीड कर रहे हैं, एलिफेंट, जिराफ, बर्ड्स हो जाएंगे. तो देखिए क्या हो रहा है? 3 लेयर का फॉर्मेशन. यही हमने आपको बताया स्ट्रेटिफिकेशन क्या है. द ऑर्गेनिज्म इन ईच इकोसिस्टम फॉर्म वन और मोर लेयर और स्ट्रेटा. ठीक है. अगर ग्रासलैंड की बात करते हैं तो उसमें 1 लेयर होगी और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम अगर बात करते हैं तो उसमें 3 लेयर है. अगर इसी तरह लेक की बात करते हैं तो देखिए बेटा इसको 3 लेयर में भी डिवाइड किया गया. एक इपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन. इपिलिम्नियन बेटा वो एरिया है जहां ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट होगी, लाइट का पेनिट्रेशन सफिशिएंट होगा, तो वहां वही स्पीसीज सर्वाइव करेंगी जो लाइट की पेनिट्रेशन और सफिशिएंट ऑक्सीजन में सर्वाइव करती हैं. जो आपका मीडियम जोन है जिसे आप क्या कह रहे हैं? ट्रांजिशन जोन भी कह रहे हैं. इसमें टेम्परेचर बहुत क्या होता है? वो डिग्रेड होता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है टेम्परेचर का, डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है टेम्परेचर. तो यहाँ क्या होंगे? वही स्पीसीज पाई जाएंगी जो ग्रेजुअली डिक्रीज टेम्परेचर को क्या कर सकती हो? फेस कर सकती हो. हाइपोलिम्नियन कोल्ड रीजन है, यहाँ मिक्सिंग बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, तो यहाँ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में क्या होते हैं? सर्वाइव करते हैं. यही लेयर का फॉर्मेशन 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट क्या है? ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन. ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ वन काइंड ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अरेंजमेंट. ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है? एक प्रकार का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का क्या है? अरेंजमेंट है. जहां ट्रॉफिक क्या लेवल क्या कहलाता है? फूड लेवल कहलाता है. जहां ट्रॉफिक लेवल बेटा क्या कहलाता है? फूड लेवल. इसको याद करना यहाँ बहुत जरूरी है कि ट्रॉफिक लेवल आपका क्या कहला रहा है? फूड लेवल कहला रहा है. ऑब्जेक्टिव में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है बेटा. अब क्या चीज है?
ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का क्या अरेंजमेंट है। मतलब क्या है, जो ग्रास है, ग्रास को ग्रॉस होपर खा रहा है, ग्रॉस होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर हो गई, और प्रोड्यूसर को खाने वाले कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो अरेंजमेंट है वही क्या है, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, फूड। एक फूड बनाता है और उनको जो खाते जाते हैं वो फूड दूसरे के बनते जाते हैं। ये क्या कहलाता है, फूड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोलॉजी के सेंस में, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप तो क्या चीज है बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। इसको याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप चाहे एमएससी के हैं, बीएससी के हैं। अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, एक्सप्रेस किया जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप में बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया इन बायोमास। मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया कितने हैं, इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। और बायोमास, व्हाट इज बायोमास, बायो मींस लिविंग, मास मींस वेट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट है पर यूनिट एरिया में, उसको आप क्या कहते हो, बायोमास कहते हो। ऑर्गेनिज्म मास इन यूनिट एरिया विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लिविंग वेट, ड्राई वेट, ash free dry weight, that is called biomass. Next, this is the example of grazing food chain. ग्रास, ग्रास को पर फीड कौन फीड कर रहा है, ग्रॉस ऊपर फीड कर रहा है, ग्रॉस ऊपर पे स्नेक फीड कर रहा है और स्नेक पे हॉक फीड कर रहा है। ठीक है ना बेटा, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपका ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, ट्रॉफिक लेवल फॉर्म किया गया है। पहला क्या है देखिए, T1, T1 आप किसे कह रहे हो, प्रोड्यूसर, जो कि ग्रास हो सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये आपका क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ग्रास ऊपर क्या है, हर्बीवोर्स है, ग्रास ऊपर क्या है आपका, हर्बीवोर्स है। ये इसको आप क्या कह सकते हो, हर्बीवोर्स को T2 कह सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका, T2 है, हर्बीवोर्स है, जो कि क्या है, ग्रॉस होपर है। ग्रॉस होपर को जो खा रहा है, स्नेक खा रहा है। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं या फिर कॉर्निवोर्स कह सकते हैं, जिसे आप T3 कह रहे हैं। स्नेक क्या है, स्नेक पे कौन फीड कर रहा है आपका, जो है सॉरी, स्नेक पे फीड कर रहा है आपका, यहाँ एक स्टेप छूट गया है, यहाँ फ्रॉग भी लिखा होना चाहिए, जिसे आप कहेंगे सेकेंडरी कॉर्निवोर्स कहेंगे। फिर आपका स्नेक क्या है, टॉप कॉर्निवोर्स है। ये ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन T1, T2, T3 एंड T4 एंड T5। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या चीज है बेटा, न्यूट्रिएंट इज द नेसेसरी एलिमेंट या फिर नेसेसरी न्यूट्रिएंट विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट क्या चीज है बेटा आपके लिए, न्यूट्रिएंट्स क्या है, नेसेसरी एलिमेंट है। नेसेसरी एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है, विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट बेटा क्या चीज देखिएगा, न्यूट्रिएंट के लिए क्या कहा जाता है, एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टैंडिंग, वो है आपका स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फिर से सुनिएगा, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट गिवन टाइम इन इकोसिस्टम। अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, amount of inorganic substances present at any given time in ecosystem is known as standing crop, is known as standing crop. Next beta, this is the nutrient cycling. This diagram shows the nutrient cycling. The nutrient absorbed by the producer plant, the nutrient is absorbed by the producer, the nutrient is absorbed by the producer. These nutrient store in the plant tissues by the process of photosynthesis. The plant form the food, and this food store in plant tissue in the form of organic matter. This organic matter is consumed by consumer
after the death of consumer and after the death of producer, the decomposer take action in the dead animal and the nutrient are released into the atmosphere. This is the nutrient cycling. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल स्टेप्स इन द ऑपरेशन ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट क्या है? रिसेप्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन. पहला सबसे पहले इकोसिस्टम का जो स्टेप है वो क्या है? रिसेप्शन है रेडिएंट एनर्जी का. दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय प्रोड्यूसर. दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू. फिर क्या है? कंजप्शन ऑफ प्रोड्यूसर बाय कंज्यूमर एंड फर्दर एलोबरेशन ऑफ कंज्यूम मटेरियल. फिर क्या है आपका? प्रोड्यूसर को कितना कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और ये फर्दर कितना एलोबरेट हो रहा है. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, complex organic compound are degraded and finally convert. Such form are स्टेबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन बाय प्रोड्यूसर. क्या है? नेक्स्ट क्या चीज है बेटा? कि कितने अमाउंट में जो आपका क्या चीज है? मटेरियल डिग्रेड हो रहा है और डिग्रेड होने के बाद क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है. बेटा इस स्लाइड में हमने जो है क्या क्या पढ़ा है? व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज एनवायरनमेंट, सेगमेंट ऑफ इकोसिस्टम, types of ecosystem, system model of ecosystem, and structural feature of ecosystem and fundamental steps involved in ecosystem. In next slide, in next part of this video, matlab ecosystem part 2, we will study about the component of ecosystem and the energy flow. बेटा अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी, स्लाइड में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको मुझसे पूछ सकते हैं, और जो है कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व